السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ نظام آباد ون ٹاؤن کے SHO رگھوپتی نے بتایا کہ نظام آباد ون ٹاؤن میں ہونے والی چوری کے واردات کے معاملے میں ملزم گایتری نامی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں گھروں میں ہونے والی چوری کے بارے میں متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر پولیس کی جانب سے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی تھی۔ SHO نے انکشاف کیا کہ ملزمان سے 20 گرام سونا، 13 گرام چاندی اور 50,000 روپے نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ گرکا پلی سے پرانا پل تک 13 کروڑ روپے کے VDCC روڈ کا منصوبہ منظور ہو چکا ہے۔ یہ منظوری مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین کی کامیاب کوششوں کا نتیجہ۔ روڈ کا کام HMWSSB زون 3 کے تحت سیوریج لائن کے ری ماڈلنگ کے بعد شروع ہوگا۔ اس منصوبے میں تاخیر سے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وقف بورڈ اور GHMC کے درمیان معاوضے کے مسئلے پر عدالتی کیس چل رہا تھا، جو اب وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ بیک سائڈ جو روڈ ڈالی جا رہی تھی GHMC کی جانب سے، وہ وقف بورڈ لینڈ تھی، جو وقف بورڈ GHMC کے اوپر کیس ڈالا اور اس کا فیصلہ آ چکا۔ اب کمپوزیشن کے لیے جناب کوثر محی الدین صاحب مسلسل کوشش کر رہے تھے، اور وہ GHMC کمشنر سے بات چیت ہو چکی ہے۔ اب یہ سیوریج لائن کا جو کام چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ روڈ کمپلیٹ کر دی جائے گی، جس سے عوام کو راحت ملے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے چیف سٹینڈنگ کونسل کے دفتر سے رابطہ کرنے اور جواب داخل نہ کرنے پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بجنور کی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جسجیت کور کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا۔ عدالت کی اس کارروائی سے پورے محکمے میں کھلبلی مچ گئی۔ عدالت نے بجنور کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کو وارنٹ تعمیل کرنے اور اگلی سماعت میں کور کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ اگلی سماعت 5 جنوری کو مقرر کی گئی۔ جسٹس منیش کمار کے سنگل بینچ نے وکرم سنگھ کی طرف سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا۔ بتا دیں کہ پورا معاملہ دھامپور کے رہنے والے وکرم سنگھ دھنگر کی طرف سے دائر درخواست سے متعلق ہے۔ وکرم سنگھ کا دھنگر ذات سرٹیفکیٹ ان کے ریٹائرمنٹ سے صرف 8 دن پہلے منسوخ کر دیا گیا۔ وکرم سنگھ نے اس حکم کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ عدالت نے اس معاملے کو سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کی بنیاد پر اور محکمہ سماجی بہبود کی تحقیقات کے بعد فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ کانگریس نے مرکز کی حکومت اور انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والے الیکشن کمیشن کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج اور سیاسی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی کے تحت نئی دہلی میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے واضح کیا ہے کہ 14 دسمبر کو دوپہر 1:30 بجے سے رام لیلا میدان میں ووٹ چور گدی چھوڑ مہا ریلی کا انعقاد کیا جائے گا، جس کا بنیادی مقصد ملک بھر میں یہ پیغام پہنچانا کہ انتخابی نظام میں مبینہ طور پر گڑبڑیاں، جانبداری اور ووٹر لسٹوں میں ہیرا پھیری جمہوری ڈھانچے کے لیے سنگین خطرہ بنتی جا رہی۔ KC وینوگوپال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ میں حکومت اور الیکشن کمیشن پر سخت تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دستخط کانگریس کو موصول ہوئی ہیں، جن میں عوام نے بوگس ووٹروں کے اندراج، حکومت مخالف ووٹروں کے نام حذف کرنے اور ووٹر رولز کے ساتھ بڑے پیمانے پر چھیڑ چھاڑ جیسے معاملات کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال صرف ووٹنگ کے عمل تک محدود نہیں بلکہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنے، کھلے عام سیاسی فائدے پہنچانے اور مبینہ رشوت جیسے معاملات تک پھیلی ہوئی ہے، جو انتخابی شفافیت کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔
समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों को एक खुसूसी ऑपरेशन SOP जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि उत्तर प्रदेश में SIR का वक्त बढ़ाया जाए। देखिए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। तय करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि SOP के साथ साथ SIR के लिए समय बढ़ाया। वियतनाम के वसती हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद आने वाले होलनाक सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है और सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 55 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 13 अफराद लापता हैं। वियतनाम डिजास्टर एंड डाइक मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि कई अजला में सूरत हाल संगीन है और इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। हुकाम के मुताबिक सैलाब के नतीजे में 28,400 से ज्यादा घर अब भी पानी में डूबे हुए हैं जबकि 946 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़राई शोबे भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं क्योंकि तकरीबन 80,000 हेक्टेयर पर खड़ी चावल और दीगर फसलें पानी में बह गई हैं। इसी तरह 3.2 मिलियन से ज्यादा मुर्गियां, मवेशी और दीगर जानवर मर गए या पानी के रेलों में बह गए। अथॉरिटी ने बताया कि मौशी नुकसान का इब्तदाई अंदाजा 9 ट्रिलियन वियतनामी डोंग लगाया गया है जो तकरीबन 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनता है। बिजली का निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ और अगरचे कई इलाकों में सप्लाई बहाल कर दी गई लेकिन अब भी 75,000 घरों में तारीकी है। हुकूमत ने 4 मुतासरा शहरों और सूबों हियो, दानांग, क्वांग, तराई और क्वांग नगाई के लिए 450 बिलियन वियतनामी डोंग के इमरजेंसी रिलीफ फंड की मंजूरी दी ताकि बहाली के कामों में तेजी लाई जा सके। पीलीभीत में जामे वोटर लिस्ट नजरसानी SIR के काम को तेज करने के लिए जिला इंतजामिया ने BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स को मुराद की पेशकश की है। जो लोग सबसे ज्यादा फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे उन्हें अपने अहल खाना के साथ जंगल सफारी, चौका बीच पर लंच और एक मुफ्त फिल्म मिलेगी। इस ऑफर से काम के बोझ के बावजूद BLOs खुश हैं और तेजी से काम कर रहे। उत्तर प्रदेश के जिले पीलीभीत में SIR के काम में तेजी लाने के लिए जिला इंतजामिया ने BLOs को बड़ी पेशकश की है। इस सिलसिले में जो लोग सबसे ज्यादा फॉर्मों को डिजिटाइज करते हैं उन्हें पूरे खानदान के साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी, चौका बीच पर लंच और मुफ्त फिल्म दिखाई जाएगी। इतलात के मुताबिक SIR से वाबस्ता BLOs पर काम का भारी बोझ पड़ रहा। उन्हें सुबह से रात तक काम करना और लोगों को तलाश करना पड़ता है जिससे उनके अहल खाना पर परेशान हो रहे। हालांकि इस नई पेशकश से BLOs काफी खुश हैं और जंगी पैमाने पर काम कर रहे। उत्तर प्रदेश में नवंबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी पूरी तरह से हावी हो गई है। इसी के साथ ऊंचे AQI की वजह से सेहत पर भी मनफी असर देखने को मिल रहा। इसका असर दिल्ली NCR से मुल्हक़ शहरों में ज्यादा है। नोएडा और गाजियाबाद में AQI 400 से ऊपर जो इंतहाई खतरनाक जुमरे में, जबकि उत्तर प्रदेश का औसतन AQI 274 तक पहुंच गया। ये भी संगीन जुमरे में है। इसकी बड़ी वजह हवा में PM 2.5 और PM के 10 ज़र्रात का बढ़ना है। हवा की सुस्त रफ्तार इस सूरत हाल को मजीद खराब कर रही। इस दौरान दर्जे हरारत के लिहाज से ज्यादातर शहरों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। मगरबी उत्तर प्रदेश में सुबह से कोहरा छाया हुआ। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर दिल्ली से मुत्तसिल शहरों नोएडा और गाजियाबाद में सूरत हाल खतरनाक। गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ AQI 400 से तजावुज मजीद बढ़ा। मगरबी उत्तर प्रदेश के कई दूसरे शहरों में हवा खराब। नोएडा में सुबह AQI 394 रिकॉर्ड किया गया जो कि इंतहाई खतरनाक। स्मोक ने इस असर को मजीद बढ़ा दिया। यूक्रेन ने अब अमेरिका की तरफ से तैयार की गई 28 नुकाती अमन तजवीज के हवाले से मुस्बित इशारे दिए हैं। बढ़ते हुए दबाव और सिफारती बहरान के दरमियान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी तरजीह विक़ार के साथ देरपा अमन है और इस मकसद के लिए अमेरिका और यूरोप के साथ मुसलसल मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस चाहता है कि यूक्रेन अगले हफ्ते थैंक्सगिविंग के मौके पर अमेरिका की जानिब से तैयार करदा
28 नुकाती अमन मंसूबे पर कम अज कम एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत करे। इस डेडलाइन के बारे में यूक्रेन की हुकूमत को आगाह कर दिया गया। हालांकि हुकाम ने इसे एक हदफ के तौर पर बयान किया। नाहुक के सख्त डेडलाइन अमेरिका ये भी तस्लीम करता है कि कोई भी हतमी मुज़ाकरात इंतहाई पेचीदा होंगे और उसे नतीजा खेज होने में हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। कैफ में अपने दफ्तर के बाहर खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुल्क को अपनी तारीख के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक का सामना है। यूक्रेन को अपने सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका की तरफ से एक ऐसे मुल्क के साथ समझौता करने के लिए शदीद दबाव का सामना है जिसने उसे 11 साल से दबाने और तबाह करने की कोशिश की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।